Welcome friends. So we'll continue with the theory of equation PYQs. So this time, actually earlier PYQs which we took depending upon the parameter like trigonometric, the complex number and all that. I observed that there was 2018 year was lacking, and that year basically is a little sentimental for me because 2018 our higher foundation JEE higher foundation batch student has performed exceptionally well. One of the students is at IIT Kharagpur, and the students are across the better engineering college. Means they are at a very better place right now. Triple IT Hyderabad and etc etc. Fine. So it was a little sentimental for me. So I was just searching for 2018 because that is nearly I don't know for what reason it was not searchable. So I have tried to check out with 2018 and I found two trigonometric question over there. So that is in continuation with our trigonometry, and there are quite a few other questions. 2018 I will tell you there is one offline test happens on 8th April 2018. It was not a January apprenticeship, it was January apprenticeship starts from 2019. So in April, in 2018 it was just one offline test on 8th April, then 15th April morning and evening online, and then 16th April morning and evening online. So that was the limitation of 2018, and that is one of the reasons why 2018 is not included at many places, because there were not much questions. 19 there were floods of question, 20 is again a more flood of question. So that's why 19 and 20 moves around many times. But I observed good questions. Even this trigonometry question, one more trigonometry question will come. So let us start with this. This first question is same as that of what we have done in the last session of something called as iota. So if you remember, alpha power 15 plus beta power 15 we have calculated. At that time I have given you some 4 approaches, but I have given you the approach of something called as the iota. Fine, iota, and one Euler's method also I told. But this time I will use complex cube root of unity. Why I want to use that complex cube root of unity? The reason is simple, that it is not a part of CBSE 12th standard, 11th standard. So because of that, the student of CBSE don't know about it much. Even the other states also it has been removed, because in order to make the syllabus in line with the JEE or the CBSE. So, but the concept of complex cube root of unity is always there. So, let me briefly explain the complex cube root of unity concept in a 2 minutes time. So, complex cube root of unity. So, suppose the number is x and the cube root of unity is suppose 1. Unity is 1, something like that. So x is equal to cube root of unity. Unity is 1. So I am just cubing both sides. So that gives me this. So that gives me this. I can factorize it using a cube minus b cube identity, which is x minus 1, x square plus x plus 1 is equal to 0. I am not interested much into that breakup and all that identity. I hope that this is fine. So either x minus 1 is 0. That gives x is equal to 1, or x square plus x plus 1 is equal to 0. That gives me complex, that gives me roots which supposed to be complex. Let us calculate it quickly. So it is minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a. So that gives me minus 1 plus or minus root 3 iota upon 2. Properly observe this, minus 1 plus or minus root 3 iota upon 2. That is something I am getting. What I am doing, I am taking just minus common, because we just like that plus. Fine, अगर रखा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रख देते हैं. So कोई problem नहीं. So we got one root to be 1, another root to be minus 1 plus root 3 I upon 2, and the third root will be minus 1 minus root 3 I upon 2. इस तरह से हमको 3 रूट मिले, उसमें से एक रूट रियल है और 2 रूट कॉम्प्लेक्स है. फाइन. सो व्हाट हैपेंड दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस गंदा सा नंबर एज ओमेगा अ ग्रीक लेटर, एंड व्हेन वी स्क्वायर दिस, आई विल जस्ट डू इट हियर, द स्क्वायरिंग ऑफ दिस minus 1 plus root 3 I upon 2 the whole square. So it gives me a plus b whole square, and it will be 1 minus 2 root 3 I, and then 3 I square is minus 3, so minus 3
and upon 2 square is 4. So that gives me 1 minus 3 is minus 2 root 3I upon 4. To be precise, to get cancelled, so minus 1 minus root 3I upon 2. And check out this, and this is same. Minus 1 minus root 3I upon 2. So keeping it short and simple, by doing this, keeping it short and simple, what I can do? I can simply write down for a complex cube root of unity called x cube minus 1, I have the zeros like 1, omega and omega square. Simple. That is something I can put on. Nothing else. The values of omega and omega square is there. It's a Greek letter omega. So these are the roots. A little property which we can use, which will be helpful for solving questions, is something like this. So minus 1 plus root 3I upon 2 minus 1 minus root 3I upon 2. Just quickly multiply the two. If I multiply the two, what will happen? It is minus 1 plus root 3I into minus 1 minus root 3I. Fine. And upon 2 is 4. Let me change the screen. Fine. So when I apply a plus b, a minus b identity, that gives me a square minus b square upon 4. So that is, if you just check out, what will happen? Minus 1 I square. So minus 3 minus 1 is plus 3. 1 plus 3, 4 upon 4 is 1. So I am getting the product of 2 to be 1. What are those two? Omega into omega square is 1. So that means omega cube is 1. That is one relation which we can pull out. Second relation is this sum of the zeros. And my equation was, what was that? X square plus x plus 1. Isn't it? X minus 1. X cube minus 1 breakup is this. So we already got 1 for this. Or in total, if I sum the three, sum of the roots. So what will happen? 1 minus half is minus 1 plus 1 get cancelled. Root 3 by 2I minus root 3 by 2I get cancelled. So I have another relation, that is the sum of the zeros is coming to be 0. So this is enough. This is enough for the time being. I told that within 2-3 minutes we will just fix it up. So that is nothing but the properties which you can pull out for complex cube root of unity. These two properties. Fine. So, and this is something which you should remember. Now let us jump to the first question, which came in 2018 JEE Mains 8th April offline. That was the last, I can say that the exam which was conducted offline. Fine. So let us start with this. Alpha beta belongs to complex number. This is very sentimental for me, that because this paper only students, my student enter into, that IIT Kharagpur and other colleges also, other premier institute. So are the distinct roots of the quadratic equation. Then question asked is get the value of this. Get the value of this. Fine. Okay, fine. X square minus x plus 1. The student who got IIT Kharagpur, he scored 205 marks in mains exam in this particular paper. 205 marks. Fine. X square minus x plus 1. Fine. So what will happen? Let me just try the roots of this. Let alpha beta, already it is given. So alpha plus beta. Or simply what I can say that the limit, we will just directly calculate using the formula. So it is minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a. Fine. So I am getting it 1 plus or minus root 3I upon 2. Fine. That is something I am getting, but there is a little catch. It is not exactly matching with this. Check out. So I can't say it as a omega because here it is minus 1. So what I can do, I will just do the little arrangement here. I can take minus common from here. So what will happen? If I took minus common, so inside it is minus 1. First I will take out with plus. So if I took minus common, so it will be minus root 3I upon 2. I hope this is fine. Fine. And then again I will take minus common. So I will consider this minus now. So it is minus 1. And inside it was minus, and I already took minus outside. So plus
root 3i upon 2. Fine. So now check out minus 1 plus root 3i upon 2 minus 1 plus root 3i upon 2. I can call it minus omega. And minus 1 minus root 3i upon 2. Minus 1 minus root 3i upon 2 is minus omega square. Fine. So cutting short again because we can't work out with this till end. So I got it like the roots of this equation is minus omega and minus omega square. That's it. That is something I am getting. Now it becomes a lollipop. See, actually it was a very easy question. No doubt it was an easy question. It's not that 2018 was a tough question and all like that. It is again an easy question. I can say little tougher compared to 19 and 20. 19 and 20 were really lollipop. I mean, it's really lollipop. And 21 also. 21 3-session questions where I am not expected mathematics to be of that level. It should be of little tougher, but I can see that out of 25 questions of mathematics 21, all the 3 sessions which has been conducted, I will give it a 85% moderate to easy to moderate and just 10-15% as little tougher. Fine, that's a different story. Okay, alpha power 101. So I can say alpha to be minus omega and beta to be minus omega. So that is my choice. There is no complication in that. Now question asked is this. So it is minus omega power 101 is something I need to find plus minus omega square power 107. That is something I need to find out. Fine. Okay, fine. The answers are real. Check out. Okay. So can I say minus sign outside from both? So it will be simply omega power 1 because both are odd power. So minus sign can be pulled out. There won't be the vanish of minus sign. It won't get cancelled, and it will be plus minus sign out omega 2 into 107 is 214. That's it. Now I know one thing. Omega cube is equal to 1. Just focus on that. So can I say that this is minus omega square? Why? Because omega power 99 is 1. Omega cube is 1, so I will bring 10. This is something I used to taught for 8th standard student, that power and indices. Fine. So 101 is 99 plus 2. Why 99? Because it is 3's power. 3 is multiple in fact, not power, 3 is multiple. So omega cube power 33 is omega power 99 and omega cube is 1 and 1 power anything is 1. So I will left with omega square only. Here again I will apply the same rule. I guess 213 is divisible by 3. So omega power 3 something, 3 times say r will give me answer 1. Omega cube is 1. So omega cube any power will give 1. So after 213 left is 1 more. So it is simply omega power 1. And I have taken one more property that sum of the zeros of the complex cube root of unity is 0. 1 plus omega square. So out of that omega plus omega square is given. So it will be minus 1. So it will be minus 1. So minus of minus 1. My answer is option C. Fine. So in order to explain this complex cube root of unity, it may take a little longer time, but it is a very simple question. लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या है? हम इसको अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट किसी को डर लगता है, नहीं आता है, तो एक दूसरे वे से करने की कोशिश करते हैं. दैट इज मे बी थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट वो एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच होगा. ठीक है, ट्राई करके देखते हैं उससे. मैं बता देता हूँ, मतलब इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. हम अल्फा बीटा मील लाते हैं इसको. ठीक है ना, अल्फा बीटा मील लाते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की जगह ऐसा कुछ कर लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये तो क्लियर है कि क्वेश्चन बिलोंग्स टू सी है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. तो जिस तरह से वो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, उस जगह हम अल्फा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो इसका एक्सपांशन अल्फा माइनस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सिंपल. सो ऑब्वियसली अल्फा इज इक्वल टू 1 एक आ जाएगा. ठीक है, और दूसरा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
ठीक है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब उसी तरह से बीटा को लेकर भी आ सकता है। तो बस हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमको क्या करना है, किसी तरह से ये जो फ्रैक्शन है यहाँ क्रिएट करना है, और हमको ये भी जीरो गिवन है और ये भी जीरो गिवन है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिमिलरली बेटा आंसर वही आएगा, शायद लिटिल लेंथियर लगे, लेकिन जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं आता है वो लोग इस वे से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी कठिन नहीं है, ये लेंथियर हो सकता है जो मैंने बताया, लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं। तो आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू दिस, फाइन, आई होप दिस इज फाइन। Okay, fine. Next is 29th question of the series. If tan A and tan B are the roots of this quadratic equation, then the value of this. अच्छा, ये ना मैं 10th में पढ़ाता हूँ, ये लिटरली 10th का क्वेश्चन है। अगर कंबाइन करें ना सिर्फ एक फॉर्मूला tan of A plus B, दैट इज अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्री को छोड़कर पूरा 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, और आई होप दैट वो tan ऑफ A plus B सभी को आता होगा। इट्स नॉट एट ऑल बियॉन्ड 10th स्टैंडर्ड। क्विकली सम ऑफ द जीरोस, tan A और tan B रूट्स हैं, सो सम ऑफ द जीरोस tan A plus tan B is 10/3, is 10/3. Product of the zeros tan A tan B is -25/3, -25/3। ठीक है, मैंने क्वेश्चन रीड करने के पहले ये सब कर दिया। अगर ऐसा है tan A tan B रूट्स है इस इक्वेशन के, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले tan ऑफ A plus B की तो वैल्यू आई जाएगी, दैट इज अ फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट, और इसके पहले हम ले चुके हैं एक दो बार ये क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला। सो इट इज tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, 1 minus tan A tan B, so that gives you 5/14। ठीक है, 3 का कैंसिल क्रॉस करेंगे, रिड्यूस करेंगे 5/14। नाउ द हैबिट ऑफ स्टूडेंट, गो बैक टू द 10th स्टैंडर्ड, tan ऑफ A plus B है, ये बनाया, ये A plus B है, तो 5/14 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब हमको तो स्क्वायर रूट निकालना आता, सॉरी स्क्वायर निकालना आता नहीं है, ऑल दैट वगैरह। अगर वैदिक मैथ्स आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसमें भी फंस जाते हैं। 196 प्लस 25 इज 221, लेकिन मैं अवॉइड करूँगा, मैं वापस 10th स्टैंडर्ड के अप्रोच पे जा रहा हूँ, मैं ये अवॉइड करूँगा। मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। मैं यहीं पे पूरा tan क्रिएट कर सकता हूँ, 10th में कर चुके हैं, यहीं पे पूरा tan क्रिएट कर सकता हूँ, इंस्पाइट ऑफ साइन एंड कॉस पूरा tan यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, मैं इसके आगे लिख लूँ, आई विल टेक cos of A plus B कॉमन। If I took cos of A plus B common from here, और in fact cos square A plus B कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, देखो सभी को cos square A plus B से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ। तो क्या आएगा, ध्यान देना, 3 tan square A plus B माइनस 10 cos A plus B से एक बार डिवाइड हुआ, sin A plus B अपॉन दूसरा cos A plus B माइनस 10 tan A plus B। ठीक है, माइनस इससे डिवाइड ही कर दिया तो -25। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये तो फंसा हुआ है, फिर से नहीं फंसा है, क्योंकि ये 1/sec square A plus B और 1/sec square होता है 1 plus tan square, तो मैं इसको रिराइट कर सकता हूँ 1/1 plus tan square A plus B, and tan square A plus B will be 25/196। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 times tan square A plus B क्या होता है, 25/196, 14 का स्क्वायर, माइनस 10 times tan A plus B is 5/14 -25। ठीक है, अब ये तो यार अब हमारे हाथ का खेल है, मतलब ये मैथमेटिकल जगलरी है यार, फटाफट सॉल्व होनी चाहिए। सो 25 3 75, 196 कॉमन डिनोमिनेटर लेकर इससे कैंसिल ही कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 700 और यहाँ पर आ जाएगा 350। फाइन, यहाँ पर आ जाएगा 350। सो दैट गिव्स मी 75 माइनस, दिस इज 1050, 75 माइनस 1050 is 975 बट नेगेटिव, एंड डिवाइडेड बाय 221, ऐसा कुछ आ रहा है।
कुछ गलत हुआ है। 196 प्लस 25, 196 moves up 75 अपॉन 196, सॉरी ये और ज़्यादा लंबा जाएगा बिकॉज 25 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया, 196 चाहिए था। सो 350 इंटू 14, सो 4900, इट शुड बी 4900 या। सो ये हो जाएगा 5600, सो 5625 या, आई थिंक इट इज मेकिंग सेंस। 5625 नेगेटिव, ठीक है। 221 का टेबल सबको आता होगा ठीक है, 221 का टेबल सबको आता होगा। तो 221 1 222 2 then it is coming 1050, so it's a 5, ठीक है, आ जाएगा 5625, ठीक है। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द आंसर टू बी -25, ठीक है। चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। कैलकुलेशंस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आंसर हमारे ऑलरेडी गिवन है 25 -25 -10 10, क्योंकि थोड़ा सा जजमेंट भी है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, इनमें जाते हम। इसको देख के इतना तो क्लियर, ये नंबर पुट करने के बाद क्या आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि 10 नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज 221 बचा है सिर्फ नीचे, तो 2210 आ रहा है कि ऊपर नहीं, उससे बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन बचा -25, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मार्टनेस, इसी को बोलते हैं कि जेई मेंस बोलो या एडवांस, इट्स मोर ऑफ स्मार्टनेस, इट्स मोर ऑफ स्मार्टनेस, हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ठीक है, दैट मेक्स इट। अदरवाइज लोग 3 महीने की मेहनत में भी बना लेते हैं अच्छा स्कोर, और कुछ लोग 2-2 3-3 4-4 साल मेहनत करते हैं लेकिन स्कोर नहीं आ पाता है। तो बिकॉज इट्स मोर ऑफ स्मार्टनेस, और मैं हमेशा ही फोकस करता हूँ कि हम ऑप्शन से जाए, दैट विल बी वेरी बेटर कंपेयर टू दैट सॉल्विंग इट टिल एंड। फाइन, द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, हमने जब शुरुआत में क्लासेस ली थी तो पॉलिनोमियल की भी क्लासेस ली थी, एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड दैट ऑन एन एवरेज हर पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन प्लस पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, ठीक है, मतलब वो कंबाइंड चैप्टर है। सो यू कैन अगेन गो बैक टू दैट पॉलिनोमियल प्ले स्टेशन। काफ़ी क्वेश्चंस लिए थे हमने उसमें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए थे। सो एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 2 0 है। ओके, नहीं, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। एफ ऑफ -1 एंड नहीं, शायद वो प्लस है, देखते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3, अगर एक रूट 3 है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को, एफ ऑफ एक्स को कोई कांस्टेंट के टाइम x -3 इंटू x अल्फा ले सकता हूँ? एब्सोल्युटली, यही हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। 3 एक रूट है, 1 रूट इज 3, अदर रूट इज अल्फा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट रहेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट के लगा देते हैं कि केवल 1 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, डजंट मैटर टू अस। सो दैट इज समथिंग आई कैन पुट डाउन। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, f of -1 plus f of 2 is equal to 0. Fine. So what will be f of -1? So k times -4. So -4k, and it will be plus, because -1 minus alpha is 1 plus alpha. ठीक है. And what is f of 2? F of 2 is k times 2 minus 3 is -1 and 2 minus alpha. Fine. So that gives me basically alpha minus 2, and here outside is k. So f of -1 plus f of 2 is 0. So addition of this 2 is 0 is equal to I am getting 4k plus 4k alpha plus k alpha minus 2k. So that gives me 4k minus 2k plus 4k alpha plus k alpha is 5k alpha is 0. So 0, I can take k common, so it is 5 alpha plus 2. k cannot be 0. k तो 0 होगा तो गेम ही खत्म हो गया, f of x is equal to 0 हो जाएगा। तो k cannot be 0, तो that means 5 alpha plus 2 is 0, that means alpha is equal to -2 by 5। मतलब मुझे दूसरा रूट मिल गया, अच्छा क्वेश्चन कुछ अलग है क्या? अच्छा, अदर रूट लाइज इन, ओके, इसके बीच में है। तो -2 by 5 क्या होता है? 0.4 नेगेटिव। नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लग रही। -1 से 0 के बीच में है ना नंबर लाइन, ये -1, ये 0, -0.4 यहाँ पर,
ठीक है, किसके बीच में, लाइज इन -1, 0, हार्डली 30-40 क्वेश्चन, आई थिंक सो, नॉट मोर देन दैट, सिंपल ये स्टेप, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 CBSE पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्वेश्चन तो सही में उसके बियॉन्ड नहीं है, तो ये 10th भी नहीं है, 9th है। मुझे 1 मिनट चेक कर दे दो, सही में कोई भी चीज़ इसमें 10th की है क्या है, 11th की है, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन टोटली 9th स्टैंडर्ड का है, टोटली 9th स्टैंडर्ड, क्रॉस चेक कर सकते हो, जेईई मेंस 2018 15 अप्रैल 2nd शिफ्ट, ठीक है। अब इससे अब क्या, मतलब मैं कितना नीचे ले जाऊँ जेईई को, मतलब जो फैक्ट है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज जेईई मेंस 2018 16 अप्रैल 1st and 2nd शिफ्ट, मीन्स मॉर्निंग एंड द इवनिंग, ठीक है। तो इससे 2018 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 10th स्टैंडर्ड का है, एग्जैक्टली 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बिलीव मी, ठीक है। देखते हैं, लेट पी क्यू आर बी रियल नंबर्स, p is not equal to q, r is not equal to 0 such that the roots of the equation, this is the equation, are equal in magnitude but opposite in sign। इससे क्लियर कट इंडिकेशन है सम ऑफ द रूट्स 0 है, सम ऑफ द रूट्स 0 है, बिकॉज अल्फा एंड माइनस अल्फा आर द रूट्स, so sum of the root is अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज 0, ठीक है। क्विकली इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते, बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे ना, बिल्कुल क्रॉस करना है, स्टेप नहीं बढ़ाना है। x प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी इज 2x, और साथ में r से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, एंड क्या किया था हमने, x प्लस क्यू और p प्लस क्यू भी है, सो प्लस p प्लस क्यू, और इधर r से क्रॉस में मल्टीप्लाई, ठीक है। और इधर ये दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये अपॉन में आएंगे इनका इधर, सो दैट इज x स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू टाइम्स, दैट इज x स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू, बिकॉज वो इस साइड आएंगे, x स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू टाइम्स x, या x इंटू x स्क्वायर प्लस qx प्लस px, सो p प्लस क्यू टाइम्स x प्लस pq। ये चीजें ना थोड़ी फास्ट बन जाती है, तो देखो हम सही में इसको एक हलवा क्वेश्चन बना सकते हैं। x स्क्वायर प्लस ये x वाला टर्म यहाँ से वहाँ भेज देते, सब कुछ वहाँ भेज देते, सो x स्क्वायर प्लस p प्लस q, हाँ -2r उधर जाएगा, टाइम्स x प्लस, ध्यान देना ये है pq, और ये पूरा उधर भेज देंगे तो -r टाइम्स p प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग। अब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a, सम ऑफ द जीरोस अल्फाबेटल लेने जैसा है क्या, कुछ नहीं, जान दो यार, सम ही लिखते हैं ना, सम ऑफ द जीरोस इज 0, ठीक है। सो व्हाट विल बी सम ऑफ द जीरो, इट इज -b/a, सो दैट मींस 2r minus p minus q is equal to 0, so that means 2r is equal to p plus q। अच्छा पूछा क्या है, मैं बुक कभी देखता ही नहीं हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट्स, अच्छा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट, अल्फा और माइनस अल्फा, है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट अल्फा, मुझे समझ में नहीं आता, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट्स क्या पूछा है उसने। अगर वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और माइनस अल्फा है, अच्छा ठीक है, अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, बाद में रिप्लेस कर देंगे, तो हमको सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट ऐसा पूछा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0, अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 ही आया हुआ है, तो -2 अल्फा बीटा, सो -2 अल्फा बीटा, मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब क्या, c/a, c by a, so it will be pq minus pr minus qr, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमको कुछ तो मिला था ना, हम उसका यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, ये जो r है ना, मैं ये लिखता ही नहीं, ठीक है ना, मैं ये लिखता ही नहीं हूँ, ये तो 0 हो गया, हमारा आंसर सिर्फ -2 अल्फा बीटा है। मैं क्या करता हूँ कि 2r, देखो ये अल्फा बीटा है, उसकी जगह हमको ये डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो p प्लस क्यू है ना, p प्लस क्यू, और ये 2r है, तो हम ये r की जगह, ये r की जगह p प्लस क्यू अपॉन 2 लिख लेते हैं, है ना, ये r की जगह p प्लस क्यू अपॉन 2 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2, और अल्फा बीटा है हमारा pq टाइम्स, सॉरी pq
ध्यान देना, पी क्यू माइनस आर की जगह मैं लिख रहा हूँ पी प्लस क्यू अपॉन टू, पी प्लस क्यू अपॉन टू और फिर से पी प्लस क्यू, ठीक है, दैट्स इट, ओवर। सो 2 से 2 क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा। मैं बाद में करता हूँ, माइनस को भी अंदर वर्कआउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चले जाएगा। सो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 2pq माइनस 2pq हो जाएगा, ठीक है, माइनस को एडजस्ट कर लिया, 2 को कैंसिल कर लिया, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि प्लस ट्वाइस पी क्यू माइनस ट्वाइस पी क्यू गेला कैंसिल हो गया, तो 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या करें, तो बहुत इजी है। देखो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन में आर नहीं है, एक ही ऑप्शन में आर है, ठीक है, और हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा था, उसमें से ये तो 0 हो चुका था, ये ओरली हो सकता है, हमको सिर्फ इसी की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पहला फोकस यही करेंगे कि आर को कैसे एलिमिनेट करें। तो मैंने यहाँ देखा और यहाँ रिलेशन आ चुका था ऑलरेडी हमारा सम से, तो उसका यूज करके एलिमिनेट कर दिया। बिलीव मी, जो लोगों ने लिटरली अभी 11th में एंट्री करे होगे और ये वीडियो देख रहे होगे, तो वो भी ये बोलेंगे कि हाँ, ये हम क्वेश्चन 10th के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज योर जेई, दैट इज योर जेई, ठीक है, जेई इज नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। अब एकदम मैंने ठान के रखा है कि मैं इस लेवल तक के जेई को लेकर जाऊंगा कि सब लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये कचरा एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल उस लेवल तक के हमको ले जाना है जेई, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी satisfies this, okay, so cos A will be -3/5, ले जाना है मतलब ले जाना है, cos A is -3/5, then the roots of this निकाल लेते हैं ना, इतनी अच्छी क्वेश्चन है, प्यारी सी, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, स्प्लिट करो, जो भी करना है, जो मर्जी, अच्छा स्प्लिट से करना है कि फॉर्मूले से करना है, इट्स योर कॉल, 9x² + 27x + 20, ठीक है, जो भी तरीके से आता है करो, लेकिन करो, ठीक है। मेरे हिसाब से 15 और 12 बन रहे हैं, यहाँ पे ट्राई कर लेना तुमने, मेरे हिसाब से तो वो बन रहा है। तो x की वैल्यू जो मैं देख पा रहा हूँ -5/3 और दूसरी -4/3, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले नहीं किया मैंने कभी, ध्यान रखना, ठीक है। तो x की वैल्यू -5/3 और -4/3, वो बोल रहे हैं कि ये भाई साहब जो है रूट्स है, तो इसमें से कौन से भाई साहब रूट्स रहेंगे, मतलब इस ऑप्शन में से किसकी वैल्यू ये रहेगी, सिंपल, हाँ क्या था ये, -3/5 का रेसिप्रोकल -5/3, मतलब वो कॉस है, तो एक तो सेक रहेगा, कहाँ है भाई सेक, लो 3 ऑप्शन में सेक है, बेवकूफ बना रहे हैं वो, -4/3, अच्छा, तो हाइपोटेनस 5 है और -4/3 मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan, सो सेकंड tan इज ऑप्शन डी, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा एकदम छोटा सा, सिर्फ एक बार ना इसको देखकर cos A = -3/5 को देखकर एक बार सोच लेना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, इतना पॉइंट क्लियर कर लेना, बिकॉज उससे कैसा है, एक क्लैरिटी आ जाएगी कि सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, देखो नेगेटिव है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, मतलब हमको मालूम है एक ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल के पार्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 90 के बीच में और 90 से 180 दो ही पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि कॉस नेगेटिव आ चुका है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बस वो दिमाग में रख लेना, ठीक है, शायद वो पार्ट 11th का है, मतलब यू नो क्वाड्रेंट कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल दैट, सो टी रेशियो कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, अदरवाइज उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया तो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर से 10th स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है, so that was in total 1 2 3 4 5 questions of 2018 is finished, ठीक है, so we'll continue with that, and believe me that is the challenge I have accepted that many student who thinks that JEE mains is hawa, ठीक है, so the challenge is I will make it down to the level that everyone will think that definitely J is something just a preliminary stage of like UPSC have that prelims exam, just like that. It's simple, it's very simple. We have seen so many questions which were based on 9th standard and 10th standard. Even we are not at the 11th standard mathematics, still we got the answers of many questions. So believe me, it's all about the concept. Fine. So students who are in 8th standard, 9th standard, please tighten your shoelace and then just start working. And students who are still in 11th and 12th and
कोई यहाँ दिमाग चल रहा है कि क्या चलेगा, क्या होगा, कैसा होगा, फिर से सोचो। कुछ गलती हुई, उस गलती पे वर्क करो और प्लीज़, हो सकता है 21 तो ठीक है गया, 22 में 4 डालो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।